Good evening, everyone. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Good evening. How are you guys? Are Fine, sir. okay. This is our first class for pharmaceutical chemistry, specifically chemistry. Pharmaceutical chemistry is basically comprised with two parts. First one is inorganic chemistry, and other one we have is medicinal chemistry. So first of all, we will be covering the inorganic chemistry part in the very first go. Okay, let's begin. Pharmaceutical chemistry is basically divided into these parts. First one is pharmaceutical impurities, monographs, isotopes, dentrifiers, desensitizing agents, anti-carriers agents in this way. In today's class, we will be discussing pharmaceutical impurities. Can anybody give me a basic example of impurity? What impurity is? Unwanted foreign particle. Unwanted particle. I need an example. You are giving me the definition. Okay, the part which is necessary to us is not the impurity. For example, let us take the example of rice and stone parts in that stone pieces. The stone pieces is basically the impurity, what we call, because it is not necessary to us. That's why we are considering it as a impurity. Now comes to the definition of what a impure compound is. Impure compound is one which is having a foreign matter in it. Foreign matter is again the same thing. The one which is completely different from the main part is foreign matter. Next, pure compound is that in which there is absence of foreign matter. The both the things are almost similar. On the only difference between the two is foreign matter is present in the impure compound, and in the pure compound it's not present. And next we have is pure. When we say a pure, in that case we relate that term with something. For example, I am telling a substance or a compound to be pure with terms of something which is already considered as standard. That's a relative term is means about. And next we have absolute pure compound are rarely met. It is the condition in practical cases we don't have purest compound, completely pure compound. We cannot, the condition cannot met. Reason being, there is a very small amount of impurity present in your compound. If you have any kind of difficulty in continuing the lecture, you can just let me know. I'll do whatever you wish in the way. This actually this lecture is very short, so you don't have to spend much time on this. So we are aware with the impure compound, pure compound, and pure is a relative term, and absolutely pure term is not. We cannot met it rarely. Okay. Next, how this impurity comes from, sources and types of impurity. As soon as I take the read the point, you will yourself will be able to understand what the term describes about. Raw material employed in manufacturing. Obviously, if the raw material is not good, then our product will also not be good. It's a normal thing. Second, we have reagents used in manufacturing. If the reagent what we are using for manufacturing purpose is contains the impurity, then the final product will itself will contain the impurity. Yes or no? Next is method or process by use in manufacturing. For example, I am taking an example of a compound which is prepared with the help of distillation. Distillation is basically evaporating that compound in the one which is having the lower boiling point will evaporate first. Yes or no? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा. डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है. तो वही चीज हो रही है. अगर मान लो कोई कंपाउंड हमारा डिस्टिलेशन मेथड से निकल रहा है, प्योर हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस केस में चांसेस होते हैं हमारे पास दूसरे कंपाउंड की इम्प्योरिटी होने के. कब? अगर हमारे दोनों कंपाउंड के बीच का बॉइलिंग पॉइंट आसपास होगा. अगर मैं कहूं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इस कंपाउंड का और इसका ज्यादा है,
अगर इसमें गैप ज्यादा नहीं है तो चांसेस है कि दोनों कंपाउंड आपके एक साथ इवेपोरेट हो, बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का एक साथ आए, तो डिस्टिलेशन करके जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसमें इंप्योरिटी आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मेन प्रोडक्ट आने से पहले इंटरमीडिएट से, मान लो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब जब हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मेन प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो कुछ पार्ट ऐसा होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का कन्वर्ट ना हुआ हो और हम पहले ही अपनी असेंबली को निकाल लें, तो इस केस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की इम्प्योरिटी आएगी, जो अगेन एक इम्प्योरिटी कॉज कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। if I'm using a distillation process and in spite of that it should be made with any other mode of method or manufacturing, in that case also we can have a kind of impurity in that. Next is manufacturing hazard. For example, HCl is very hazardous to us and it is used in the experiment, and it can create a impurity if it is having a kind of reaction. For example, अगर क्लोरीन कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे रहा है AgNO3 के साथ, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, वो हजार्डियस एलिमेंट की वजह से हो रहा है आपका, इसलिए हम इसको सेवेंथ कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आया स्टोरेज कंडीशन। इसका बेसिक सा एग्जांपल मैं ये बता सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कोई हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कंपाउंड है मेरे पास, हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग आपको पता होगा, वन विच कैन एब्सॉर्ब वाटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ, जो हमारे घर में नमक होता है, अगर बरसात के मौसम में उसे खुला छोड़ दोगे तो उसमें नमी आ जाएगी, तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसको हम बोलते हैं। अगर मेरा कंपाउंड की स्टोरेज कंडीशन में लिखा हुआ है कि वो सील्ड कंटेनर के अंदर रखा हुआ होना चाहिए, अगर आप उसे सील ना रखकर ओपन रख दे रहे हो, तो वहां पर एयर जो प्रेजेंट है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, ये सारी जो चीजें वो आपके मेन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगी और अनवांटेड कंपाउंड्स को लेके आएंगी, जो अगेन इंप्योरिटीज को लीड करेगा। इसके बाद आपका नाइन्थ पार्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन। अगर मान लो किसी कंपाउंड की सेल्फ लाइफ आपको नोन है कि वो 2 साल या 3 साल के बाद उसकी एक्सपायरी कंडीशन आएगी, क्यों हो रहा है वो? अब एक केस तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके कंटेनर के साथ आपके प्रोडक्ट का कोई रिएक्शन हो, एक केस तो हमारा ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब स्टोरेज कंडीशन में जा रहा है, स्टोरेज कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि आपको रेफ्रिजरेट करके रखना था अपने प्रोडक्ट को, लेकिन आप उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दे रहे हो। रूम टेम्परेचर पर अगर उसको रख दोगे, अगेन वो उसकी मेन जो कंपोजिशन है वो डिसेबल हो जाएगी। तो इस कंडीशन में फिर से हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग जो है इम्प्योरिटी को लीड करेगा। टेंथ पार्ट इज एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन, डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन विद सुपीरियस और यूजफुल मटेरियल। ये वो कैटेगरी है जब हम इम्प्योरिटी को इंटेंशनली भी डालना चाह रहे हैं या एक्सीडेंटल डालना चाह रहे हैं। एडल्ट्रेंट वाले केस में भी आपका इम्प्योरिटी की कंडीशन आती है जब हमारा अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है। सुपीरियस और लास्ट वाला पॉइंट जो है मैं इसको डिस्कस कर रहा था अभी, यूजफुल मटेरियल भी कई बार क्या होगा, हम ऐसा इम्प्योरिटी कंसीडर करते, इंटेंशनली उसको ऐड करते हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। एनीबडी? स्पीड में हो रहा है, स्लो करूं? नो सर। ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर इम्प्योरिटी है तो हमारे सैंपल में या प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? पहला, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मान लो मेरी वो इम्प्योरिटी हैवी मेटल्स की है, लेड की है, एच मरकरी की है, ये आर्सेनिक की है, ऐसे आयरन की, ऐसे कोई भी अगर हेवी मेटल प्रेजेंट है, वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब एक केस कैसा हो सकता है, वो हमें हार्म तो नहीं कर रहा, इम्प्योरिटी कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचा रही, लेकिन वो थेरेपेटिक एफिकेसी को डिक्रीज कर रही है। तो अगेन हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस पर्पज से हम उस फॉर्मुलेशन को इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो इफेक्ट हो रही है, तो डिक्रीज करे थेरेपेटिक इफेक्ट को। नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने ये बात सुनी होगी, अगर हम सोल्यूट का एडिशन करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये मेरा सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैं सोल्यूट को अगर ऐड कर रहा हूं, तो जैसे जैसे इसके अंदर सोल्यूट आता है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यस और नो? सुना है, नहीं सुना? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो आपकी एक काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। अब इम्प्योरिटी किसे कंसीडर कर रहे हैं यहाँ हम?
या जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के अंदर आया है, इसे हम एज ए इम्प्योरिटी कंसीडर कर रहे हैं, और इस इम्प्योरिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है कब, जब वो इम्प्योरिटी उस आपके दूसरे कंपाउंड के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म अगर कर दे। इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अगेन इम्प्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट, टेक्निकल डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेशन एंड इनकम्पेटिबिलिटी, ये एक दूसरे से कुछ हद तक रिलेटेड है। अब इनकम्पेटिबिलिटी वाले केस में क्या होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन की वजह से उस हमारे मेन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के ऊपर या थेरेपेटिक इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसे हम इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ये किसकी वजह से आ रही है, अगेन इम्प्योरिटी की वजह से आ रही है, और ऐसा ही चीज आपके फॉर्मुलेशन के अंदर भी होती है। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ सेल्फ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस, इम्प्योरिटी आ रही है, कंपाउंड इम्प्योर होगा, हमारा स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा तो सेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी डिक्रीज होगी। तो ये थे आपके इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मैनी एक्सपेक्ट्स, कैसे कैसे हम देख चुके हैं इस करंट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट, किस कौन से मेथड है जो हमारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिससे हम प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले वॉशिंग से कर सकते हैं। वॉशिंग का सबसे ज़्यादा जो केस है वो आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के केस में आता है, जहां हम हमारे प्रेसिपिटेट्स को वॉश करते हैं और जिससे हमारा जो मेन प्रेसिपिटेट है वो वॉश हो जाते हैं। दूसरा हमारा ड्राइंग हो सकता है, अगर हमारा कोई सॉल्वेंट एज अ इम्प्योरिटी है, एक सॉल्वेंट अगर हमारा इम्प्योरिटी है और उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ड्राइंग की हेल्प से हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एक बार आपके क्रिस्टल बन चुके हैं, उन्हीं क्रिस्टल को आप दोबारा बनाना चाहते हो, तो ये ज्यादातर आपका अल्कोहल की हेल्प से किया जाता है। अल्कोहल क्या होगा, पहले आप अल्कोहल से वॉशिंग करोगे और जब वो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, जो एक्सेस आपका अल्कोहल होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये रिक्रिस्टलाइजेशन में यूज होता है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी आपका ऐसा फिनोमेना है जहाँ अगेन हीटिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, सब्सटेंस आपका बॉयल होगा और उस बॉइलिंग की वजह से आपका एक जो सॉलिड कह लो या लिक्विड स्टेट भी हो सकती है, आपका कंपाउंड डायरेक्टली गैशियस स्टेट में आ जाएगा। और जब गैशियस स्टेट में इसको वापस कंडेंस करते सप्लीमेशन वाले केस में कंडेंस कर लो, इस जब ये गैशियस फॉर्म में है अभी भी ये प्योर है, और अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आना चाहते हो तब आपको कंडेंसर यूज करना होगा। और इस लिक्विड फॉर्म में आने के बाद अगेन ये आपका जो कंपाउंड होगा वो सब्लिमेशन के बाद कंप्लीटली प्योर होगा। तो ये हमारे मेथड से जिससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम प्योरीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा वॉशिंग, ड्राइंग, रिक्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। ये ऐसी टर्म है जिससे आप बहुत अच्छे से अवेयर हो, बेसिक्स चल रहा है एक तरीके से केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, ये हमारा मेन पार्ट आता है जो इस इनऑर्गेनिक का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एक से दो क्वेश्चन आने के जीपेट में पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हैवी मेटल्स का बेसिकली बताया गया था। इसमें हम क्लोराइड, आयरन, सल्फेट और लेड, इस तरीके के सारे कंपाउंड्स का, आयरन का लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं। लिमिट टेस्ट क्या मीनिंग है इसका, ये एक रेंज डिफाइन करेगा, एक लिमिट डिफाइन करेगा कि अगर आपकी इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी अगर इस लिमिट के अंदर है तो एक्सेप्टेबल है, अगर इस लिमिट के अंदर नहीं है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात क्या है, लिमिट टेस्ट से क्वांटिटेटिव टेस्ट है। क्वांटिटेटिव टेस्ट हम उसे कहते हैं जो आपका रिजल्ट नंबर्स की फॉर्म में अपीयर हो, किसी भी डिजिट्स के फॉर्म में अपीयर हो, उसे हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। अगर इसी को मैं कंपेयर करना चाहूँ क्वालिटेटिव टेस्ट के साथ, तो उसे हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैं कलर के साथ अगर मैं बात करूँ, कलर जो हम विजुअली डिटेक्ट कर सकते हैं, कलर को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वो क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर आ जाएगा आपका। ये ऐसे टेस्ट है जिसको डिजाइन किया गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहला, और दूसरा कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्क्रीन पर इमेज है अभी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करा होगा लैब में। इस इसका एक नाम होता है, क्या मैं नाम जान सकता हूँ, बेसिक से ये नेस्लर सिलेंडर, नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं इसे। नेस्लर सिलेंडर में क्या होता है आपका, हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, ए और बी।
इसमें से ए बी जो है आपका वो स्टैंडर्ड होता है और ए जो है आपका वो सैंपल होता है। इसे हम सैंपल भी कह सकते हैं या फिर टेस्ट भी कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए और बी टेस्ट को और सैंपल को कंपेयर करते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ऐसे हमारा लिमिट टेस्ट डिफाइन होता है। इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं पहले एग्जांपल के साथ। क्लोराइड, क्लोराइड का बेसिक जो लिमिट टेस्ट है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैं NaCl ले रहा हूँ यहाँ पर, एक क्लोरीन कंपाउंड जो है वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं AgCl के। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट की प्रेजेंस हमारे क्लोरीन को आइडेंटिफाई करती है। अब ये प्रेसिपिटेट कितने बन रहे हैं उसके बेसिस पर हम बताएंगे हमारा क्लोराइड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, टेस्ट या स्टैंडर्ड दोनों में से किसी एक में। चलिए टेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कैसे करते हैं इस लिमिट टेस्ट को। लिमिट टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट सॉल्यूशन लेना है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है। टेस्ट सॉल्यूशन में मेरे पास क्या है, ये 1 ग्राम वो सब्सटेंस है जिसमें क्लोराइड की अमाउंट को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। 1 ग्राम सब्सटेंस लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 1 ग्राम क्लोराइड प्रेजेंट है। इसका मीनिंग है उस सैंपल का, वो पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, उस पाउडर का टोटल वेट 1 ग्राम है, उसके अंदर मैं क्लोराइड कितना है वो आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। इसके अंदर 10 ml वाटर ऐड करा, 1 ml HNO3 ऐड करा और इसको डाइल्यूट कर दिया गया अप टू 50 ml नेसलर सिलेंडर के अंदर, और फाइनली ऐड करा AgNO3 को। रिएक्शन बिल्कुल वही है जो आपका ऊपर होगा, इसमें टर्बिडिटी ऑफ ऑपेल्सेंस प्रोड्यूस होगा। और ये टर्बिडिटी ऑपेल्सेंस को हमें देखना है कि कितने लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम जानना चाहते हैं कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड में क्या है, 0.0584 वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। इस सोडियम क्लोराइड, इसको एज अ स्टैंडर्ड ट्रीट कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को। अब सेम वही इंग्रेडिएंट है, वही जो हमने पहले डाले हैं, HNO3 है हमारा, नेसलर रिएजेंट 50 ml तक डाइल्यूशन करा, AgNO3 का एडिशन करा और ऑपेल्सेंस या टर्बिडिटी को चेक करा। टेस्ट की और स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी को जब कंपेयर करेंगे तब हमारा लिमिट टेस्ट पता चलेगा पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर टेस्ट का टर्बिडिटी कम है और स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है, इट मीन्स हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया। और अगर अपोजिट केस हो तो उस केस में हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, ये था हमारे क्लोराइड के बारे में बात। नेक्स्ट है हमारे पास एक, यही है हमारा, ये ये वो वाला केस है जब आपका AgNO3 ऐड नहीं हुआ है, इसके अंदर सिर्फ क्लोराइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने कुछ अमाउंट में AgNO3 ऐड करा है तो यहाँ पर टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई है और वो इस लेवल तक नहीं है कि पूरे क्लोरीन को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें और ज्यादा AgNO3 का एडिशन जब हुआ तो उस AgNO3 के एडिशन से टर्बिडिटी और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर टर्बिडिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड की अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं सल्फेट का लिमिट टेस्ट। सल्फेट, अब पैटर्न कुछ वैसा ही चलेगा जैसे बात कर रहे थे। डिफरेंस क्या है, सल्फेट का जो टेस्ट है वो बेरियम सल्फेट रिएजेंट के हेल्प से करते हैं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट में क्या होता है, सल्फेट कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। वहां पर AgCl के प्रेसिपिटेट बन रहे थे, यहाँ बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और क्लोरीन आपका फ्री फॉर्म में निकल जाएगा जो कि बेरियम क्लोराइड से निकल कर आया। इसको और देख लेते एक बार। यहाँ पर कुछ कंडीशंस क्या है हमारे पास, टेस्ट है और स्टैंडर्ड है। टेस्ट में क्या है, सबसे पहले 1 ग्राम टेस्ट सैंपल लिया, 2 ml डाइल्यूटेड HCl लिया, 45 ml तक इसको डाइल्यूट करा विद वाटर और ऐड करा बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अगेन टर्बिडिटी देखी सेम वैसा ही है जैसे पहले हो रहा था। दूसरे केस में क्या है, स्टैंडर्ड वाले में 1 ml स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारे पास, 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम, K2SO4 ये हमारा स्टैंडर्ड है यहाँ पर। उसके बाद सेम पहले जैसा टेस्ट जैसा 2 ml HCl ऐड करा, वाटर अप टू 45 ml और बेरियम सल्फेट रिएजेंट। अगेन टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई और अब फिर से वही सेम चीज करेंगे, टेस्ट और स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट की टर्बिडिटी कम आ रही है और स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा, इट मीन टेस्ट हमारा पास है फेल है। हेलो, हेलो,
हेलो। सर क्वेश्चन रिपीट करना है सर, किसकी टर्बिडिटी ज्यादा होती टेस्ट अगर हमारी टर्बिडिटी टेस्ट की कम है और स्टैंडर्ड की ज़्यादा है तो उस केस में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास होगा या फेल होगा? है सर? पास हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हर्ष तुम भी सुन रहे हो लग रहा है। हाँ जी सर। अब मेरे पास यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्रेजेंट है। यहाँ पर सब्सटेंस के अंदर भी, सैंपल के अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट है। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड के अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट है, और 5 ml इसके अंदर भी, ये इसके अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट है। तो ये वाला सल्फेट निकल कर क्यों टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये टर्बिडिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? जब फर्स्ट रिएक्शन तो यही कह रहा था सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो जब मैं 5 ml रिएजेंट डाल रहा हूँ तो पहले से प्रेसिपिटेट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? क्वेश्चन समझ आया? सर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन बात, तो अच्छा आपका। फिर से पूछ लेते, कोई बात नहीं। बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें भी सल्फेट प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट, और हाँ सब्सटेंस के अंदर भी सल्फेट प्रेजेंट है। हाँ जी। अब जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ बेरियम क्लोराइड, सिर्फ सैंपल वाले सल्फेट के साथ क्यों रिएक्शन कर रहा है? ये जो ऑलरेडी बेरियम सर सल्फेट प्रेजेंट है इसको भी तो टर्बिडिटी देनी चाहिए थी, या फिर ये सल्फेट जाके बेरियम क्लोराइड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? सर एक K2SO4 प्रेजेंस की वजह से। K2SO4 का केस अलग है, वो स्टैंडर्ड का है। इंडिविजुअल में है ये दोनों चीज एप्लीकेबल। हो सकता है कि वो डिस्प्लेस ना कर पा रहा हो। डिस्प्लेस ना कर पा रहा हो, और कुछ गैस करो। दो ही जने हो, अब हम 3 जनों की क्लास चल रही है। सर बॉन्ड हो सकता है उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर वर्ड जो ध्यान देने का वो ये यहाँ पर बेरियम सल्फेट रिएजेंट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर रिएजेंट आ जाता है इट मीन्स बेरियम सल्फेट अकेला नहीं है। इस बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड, अल्कोहल और स्मॉल अमाउंट में पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट है। इसलिए एज अ नाम इसका बेरियम सल्फेट दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में हाईलाइट करके लिखा है और ऊपर बेरियम सल्फेट रिएजेंट बोल के। ये बेरियम क्लोराइड, अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिएजेंट है, इसमें एज सच कहीं बेरियम सल्फेट नहीं है। अगर इसके आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखोगे, पोटेशियम सल्फेट है वो एक अलग चीज है, पोटेशियम सल्फेट का अपना एक अलग रोल होता है। अल्कोहल का रोल होता है सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है, पहला। और पोटेशियम सल्फेट का रोल होता है रिएक्शन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर स्मॉल अमाउंट में भी सल्फेट प्रेजेंट है उसको भी डिटेक्ट करेगा K2SO सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। इसके लिए फिर एक क्वेश्चन और आना चाहिए तुम्हारी साइड से यहाँ, कि जब सल्फेट पोटेशियम सल्फेट के अंदर भी प्रेजेंट है जो सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा रिएक्शन में? गैस करो, गैस करो, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं। इस केस में क्या है, यहाँ पर बात आती है आयोनिक प्रोडक्ट की। जब आगे हम बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक कंपाउंड का डिसोसिएशन, आयन्स में कन्वर्ट होना, पहले होता है और दूसरे का बाद में होता है। इस K2S पोटेशियम सल्फेट को इस तरीके से ऐड किया जाता है कि जो हमारा सब्सटेंस के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है वो पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा, उसके वो पहले डिसोसिएट होगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और इसके बाद पोटेशियम सल्फेट की वजह से कोई भी आपका सल्फेट आयन निकल कर नहीं आएगा, वो सिर्फ सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए इसे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कोई डाउट है आपको? एक्सक्यूज मी सर, रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट या पूरा? जो आपने क्वेश्चन किया था ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो मेंशन है उसमें से आंसर बता रहा हूँ मैं इसका। इसमें से बेरियम सल्फेट की, सल्फेट जो यहाँ पर मेंशन है इस रिएजेंट के अंदर, इसमें हमारा सल्फेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें बेरियम क्लोराइड, अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट है। जिसमें से बेरियम क्लोराइड का तो बेसिक जो हमारा मेन रिएक्शन है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अल्कोहल सुपर सेचुरेशन को प्रिवेंट करेगा सल्फेट आयन की, और पोटेशियम सल्फेट जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा।
अगर स्मॉल अमाउंट में भी सल्फेट आयन प्रेजेंट है सैंपल या स्टैंडर्ड किसी में भी, उस स्मॉल अमाउंट को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी अगर होगी तो वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट के अंदर हो सकती है। दूसरी बात मैंने कही आपको, आयोनिक कंसंट्रेशन रिएजेंट की वो इस तरीके से एडजस्ट करी जाती है कि जो बेरियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का है वो एक्सीड कर जाता है। बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है उसका वही रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाएगा। तभी हमारे जो बेरियम सल्फेट के जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेसिपिटेट है जिसकी वजह से हम सल्फेट के अमाउंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, वो हमारा इस एक्सीड ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट की वजह से होता है। ओके, स्टिल एनी डाउट? सर ये सुपर सैचुरेशन का बता दो। सुपर सैचुरेट में क्या होगा, जब मेरे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, एक तो क्या चीज होती है बेरियम सल्फेट में, ये कैपेबिलिटी होती है अगर एक मॉलिक्यूल एक प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट का, तो वो क्या करता है एज अ सीडिंग एजेंट काम करता है। सीडिंग एजेंट का मतलब ये है बाकी जितने सल्फेट फ्री सल्फेट प्रेजेंट है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा और ज्यादा आपके बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब ये जो प्रेसिपिटेट बने हैं ये एक बार में ना बन जाए, धीरे धीरे बने, इस चीज के लिए हम यहाँ पर सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर वो एक साथ बन जाते हैं तो वो सुपर सैचुरेशन की कंडीशन आ जाएगी। इस सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल रिस्पॉन्सिबल है। आगे चले। तो अल्कोहल ऐसा क्या करता है कि सुपर सैचुरेशन नहीं होती है? अल्कोहल आपका मीडियम इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा कि सुपर सैचुरेशन होने नहीं देगा। बाकी मैं इसको डिटेल में बता दूंगा आपको आगे जब पढ़ेंगे। इसके बाद लिमिटेस ऑफ आयरन के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, जो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी लिमिट टेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी एक रेंज पता करना चाहते हैं किसके अंदर होना चाहिए, वो आयरन आ गया। अब आयरन में क्या है, पहला रिएक्शन जो वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड फ्री नाइट्रिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, जो सिट्रिक एसिड है वो क्यों ऐड करा गया है, सिट्रिक एसिड जो है वो आयरन के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो हम सिट्रिक एसिड का ऐड करते हैं। पहला सिट्रिक एसिड ऐड करा। अमोनिया काम करता है आपका एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने में, और पहला जो हमारा रिएजेंट है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड है। स्टेप वन में क्या हो रहा है, आयरन का रिएक्शन हो रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड फ्री नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट। जब हमारा कंपाउंड बनेगा वो फेरस थायोग्लाइकोलेट होगा और इसका कलर कैसा है, पर्पल। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्वेश्चन बनता है। आयरन की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो फ्री फॉर्म में होता है तब +3 होती है, और नेक्स्ट स्टेट में जब जाता है वो +2 में चला जाता है, +3 टू +2 में चेंज होता है। और किसकी वजह से होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड की वजह से होता है। थर्ड वन इज कंपैरिजन करते हैं, सेम वही चीज है, कलर आ गया आपका पर्पल कलर। अब टेस्ट और स्टैंडर्ड इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कलर को यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये है कि जो हम कलर देखते हैं वो वर्टिकली ऊपर से देखते हैं। अगर हमारे टेस्ट का कलर ज्यादा आया और स्टैंडर्ड का कम है तो टेस्ट पास हुआ फेल हुआ, फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा एग्जैक्टली। और अगर टेस्ट की कलर इंटेंसिटी कम है स्टैंडर्ड की ज़्यादा है तो उस केस में हमारा पास हो जाएगा। सेम वैसे ही पैटर्न चल रहा है। एक यहाँ पर चार्ट है, इसके अंदर पहली जो कंडीशन दिखाई गई है उसमें हमारा इनिशियली आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये आपका कंपाउंड बना रहा है, और दूसरी कंडीशन है इसमें इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की है। जो हमारा पहला रिएक्शन है वो फेवर होता है बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है। और अभी बताया डाइल्यूट अमोनिया और सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। सेम वही है, फ्लो चार्ट में मेंशन कर रखा है। स्टैंडर्ड एक साइड है, सैंपल टेस्ट एक साइड है। सिट्रिक एसिड, अमोनिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड, पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना और कलर्ड को कंपेयर करा टेस्ट के और स्टैंडर्ड के।
सेम वही चीज़ है जो पहले अब तक करते आ रहे हैं। तीनों टेस्ट कुछ हद तक सेम है कि हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड और सैंपल की इन टर्म्स ऑफ टर्बिडिटी और कलर इंटेंसिटी, इन दोनों में से किसी एक पैटर्न पे हम जाते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है आपका लेड। इस लेड का टेस्ट जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, हैवी मेटल की कैटेगरी में भी आता है आपका, या अलग से लेड का टेस्ट भी पढ़ते हो। लेड के टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो हमारा लेड है उसका रिएक्शन जो है वो डायथायाजोन के साथ किया जाता है। इस टेस्ट का नाम भी आता है डायथायाजोन। और इस डायथायाजोन का जब भी किसी से भी बाइंड नहीं है, ये वाली स्टेट जो है, तब इसका कलर ग्रीन होगा। और ये ग्रीन कलर कब होगा, जब इस डायथायाजोन को आप क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व कर दोगे। और दूसरा क्या है, जब ये रिएक्शन, ये इसका काम क्या है बेसिकली, ये डायथायाजोन जितना भी लेड आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसे कैप्चर करेगा और ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है आपका लेड डायथायाजोन। इस लेड डायथायाजोन का कलर वॉयलेट होता है। अगेन ये भी आपको क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस पे होगा। तो पहली बात निकल कर आई यहाँ पे कि डायथायाजोन की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगा। इनिशियल कलर ग्रीन होगा जब लेड आपका फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये दोनों कंबाइन कर लेंगे तो आपका रिएक्शन कलर जो है वो वॉयलेट में चेंज हो जाएगा एंड वॉयलेट में चेंज हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, जो वॉयलेट कलर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इस वॉयलेट कलर को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड एड सैंपल। अगर इंटेंसिटी कम आ रही है तो टेस्ट पास, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है तो टेस्ट फेल। सेम वही चीज़ पहले वाली, सिर्फ चेंज कहाँ पे आया, रिएजेंट चेंज हुआ। एक चीज़ ध्यान देने की है, जो रिएक्शन जो है वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर किया जाता है, क्योंकि कंडीशन इस तरीके से फेवरेबल है, एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये कलर अपीयर होंगे। एक कलर आने के एक रीज़न ये भी होता है, H प्लस आयंस या एक्सेप्ट करता है या लूज करता है, जैसे आपका इंडिकेटर के केस में भी होता है। इंडिकेटर को भी हम आगे पढ़ेंगे जब बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में एनालिसिस वाली क्लासेस में। ठीक है, लेड का टेस्ट हो गया। इसी को अब मैं टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास सब्सटेंस है। सब्सटेंस वही है जिसके अंदर लेड प्रेजेंट है। 6 ml अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फिनोल रेड एंड अमोनिया। अमोनिया डाला हमारा सोल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए। और बाकी जो आपके रिएजेंट है उनकी कुछ ऐसा स्पेसिफिकली कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, पर इनकी प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रहा है तो हम इन चीज़ों को ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब तक हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट, मेन जो रिएजेंट था डायथायाजोन, उसका रोल नहीं आया, वो स्टेप 2 में आएगा। हम 5 ml की क्वांटिटीज में 5 ml में डायथायाजोन को ऐड करेंगे। जैसे ही आप डायथायाजोन सैंपल के अंदर डालोगे तो वो पहले वाले रिएक्शन को फॉलो करेगा और कलर वॉयलेट प्रोड्यूस कर देगा। अब इस 5 ml वाली कंडीशन को अब तब तक प्रोसीड करेंगे जब तक आपके उस सैंपल के अंदर ग्रीन कलर रजिस्ट ना कर जाए। अगर उसके अंदर ग्रीन कलर आ गया, इट मीन्स अब आपका फ्री फॉर्म में डायथायाजोन प्रेजेंट है, पहली वाली कंडीशन। और जितना भी लेड था वो कैप्चर होकर वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया। अब वो वायलेट में आपको बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। अब आपको इनिशियल कलर है जो वो ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि डायथायाजोन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है और वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेप 2 हो गया मेरा। अब स्टेप 2 के बाद क्या करूंगा मैं, जितना भी मेरा वो सैंपल था उसको नाइट्रिक एसिड के साथ डिजोल्व करूंगा। नाइट्रिक एसिड के साथ जब डिजोल्व करूंगा, जो मेरा लेड था, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था कंपाउंड जिसे कि मैं लिमिट टेस्ट फाइंड आउट कर रहा था, वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब फर्दर इस लेड नाइट्रेट के साथ डायथायाजोन का एडिशन करेंगे। अब हमें जो है वो कलर ऑब्जर्व करना है, और वो कलर ऑब्जर्व करना है हमें, उससे पहले 30 सेकेंड तक उसे शेक करना है और कलर्स को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड और सैंपल के बीच में। जो स्टैंडर्ड है वो भी सेम पैटर्न को फॉलो करेगा जो आपका टेस्ट फॉलो करा है, सिर्फ डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो सैंपल है और स्टैंडर्ड आपका 1 ppm ब्लड का एक कंपाउंड ले लेंगे, जिसकी ब्लड की कंसंट्रेशन हमें नोन है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। बाकी प्रोसीजर आपका सेम इसी वे में ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर्सेनिक। आर्सेनिक भी आपका हैवी मेटल की कैटेगरी में आता है। ये भी आपका लेड के जैसा हैवी मेटल्स के साथ भी आइडेंटिफाई हो सकता है, और रिस्पेक्टिव इसका एक आर्सेनिक का प्रॉपर टेस्ट भी है, लिमिट टेस्ट। सबसे पहले जो हमारा सैंपल है, टेस्ट लगा लो या स्टैंडर्ड लगा लो, कुछ भी, उसको हम क्या करेंगे, एसिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जितना भी आर्सेनिक है, ट्राइवेलेंट स्टेट, 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपका आर्सेनिक। एक +3 की स्टेट में जिसे ट्राइवेलेंट बोलते हैं, और दूसरा आपका +5 की
स्टेट में, जिसे पेंटावेलेंट बोलते हैं। अब जो आपका आर्सेनिक है एसिड जो है उसके अंदर H+ आयंस भी प्रेजेंट है, OH- आयंस भी प्रेजेंट है, चाहे वो आपके वाटर से आए हैं या किसी एसिड से भी आए हैं। ऐसे भी एसिड्स हैं जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है, एग्जांपल आपका जैसे एसिटिक एसिड हो गया, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, जितने इसके ऊपर चार्ज है उतने ही OH ग्रुप आकर अटैच हो गए, तो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक एसिड जो आपका आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया, स्टेप 1। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मेरा इनिशियली +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पेंटावेलेंट स्टेट में आर्सेनिक प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, वो आर्सेनिक एसिड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ जो आर्सेनिक एसिड बना वो फिर से आपका आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होगा। फाइनली मेरे पास जो मुझे मिलेगा वो आर्सेनियस एसिड ही मिलेगा, चाहे वो ट्राइवेलेंट स्टेट में है चाहे वो पेंटावेलेंट स्टेट में है। और फर्दर आपका आर्सेनियस एसिड पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, आर्सेनियस एसिड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो आर्सेनियस एसिड बना वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन कैसा होता है, नेसेंट हाइड्रोजन होता है। इसका प्रोडक्शन होता है किसी मेटल आयन जैसे जिंक पर आप किसी एसिड को डालते हो तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस आर्सेनियस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी आर्सीन गैस। अब ये आर्सीन गैस हमारी मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक और चीज का रोल आता है, ये जो आपका बाकी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग है। बाकी में हम कलर को कंपेयर कर रहे थे, नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म कर रहे थे, इसका अपरेटस भी अलग है, उसको मैं आगे अभी बताऊंगा। इसमें एक चीज नई ये है, मरकरिक क्लोराइड पेपर जो वो प्रेजेंट होता है। उस मरकरिक क्लोराइड पेपर के अंदर जब आर्सेनिक गैस को, इस आर्सेनिक गैस को हम डालते हैं, आर्सेनिक गैस को HgCl2 मरकरी क्लोराइड पेपर के ऊपर डालते हैं, तो येलो और ब्राउन कलर का स्टेन बनता है। इस येलो और ब्राउन कलर की स्टेन की इंटेंसिटी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा लिमिट टेस्ट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। और कंपेयर किससे करेंगे, फिर से स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर इंटेंसिटी कम है सैंपल की और स्टैंडर्ड की ज़्यादा है तो टेस्ट मेरा पास हो जाएगा, और अगर रिवर्स वाला केस है तो टेस्ट मेरा फेल हो जाएगा। कलर चेंज कैसा मिले, कलर कैसा मिलेगा मुझे स्पॉट का, येलो मिलेगा या ब्राउन मिलेगा। स्टेन्स कंपेयर कर लिया विथ स्टैंडर्ड एंड सैंपल। ऐसे आपका आर्सेनिक का टेस्ट होगा। इसका एपरेटस मैं बता देता हूँ उससे पहले। मरकरी क्लोराइड पेपर क्या होता है, मरकरी क्लोराइड पेपर बनाने के लिए हम जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड HgCl2 के अंदर सोक करके रख देते हैं और फिर उसको ड्राई करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यहाँ पर जो HgCl2 है वो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो पेपर के ऊपर जो मरकरी क्लोराइड है HgCl2 वो फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ HgCl2, और येलो और स्टेन बनाएगा पेपर के ऊपर। अब तक जो हम चीज़ें देख रहे थे वो हमारी उसमें हो रही थी, या तो नेस्लर सिलेंडर में हो रही थी। अब इसका अपरेटस अलग आया थोड़ा। यहाँ पर हमारा सैंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा ये जो असेंबली है, ये जो सेकंड इमेज में आपको दिख रही है, ये असेंबली मरकरिक पेपर की यहाँ ऊपर प्रेजेंट होती है। और सैंपल जब ऐसे ट्रेवल करता है और गैशियस फॉर्म में आपका आर्सेन गैस जब निकल कर ऊपर जाती है तो वो स्पॉट फॉर्म करती है मरकरी क्लोराइड पेपर की हेल्प से। इस टेस्ट का नाम है गोटजेट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। लास्ट टेस्ट वी हैव इज आर्सेनिक। ये वही आपका मैं टेबुलर फॉर्म में बता रखा है। सबसे पहले सैंपल लोगे आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे, जिंक ऐड करोगे। ये जो इनके प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रहा है तब हम इनको ऐड कर रहे हैं। इनका भी अगेन कोई रिस्पेक्टिव जस्टिफिकेशन नहीं है क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपका स्टेन बनेगा कैसे, जो रिएक्शन ऊपर जो फॉलो हुआ था उसी रिएक्शन से आर्सीन गैस बनेगी। आर्सीन गैस जो आपके पेपर के साथ रिएक्ट करेगी और स्टेन प्रोड्यूस करेगी, और स्टैंडर्ड और सैंपल के को हम कंपेयर कर लेंगे। ओके, लास्ट वन इज योर हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स का जो टेस्ट है वो लेड, कॉपर, मरकरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, मॉलिब्डेनम, जितने भी हैवी मेटल्स के टेस्ट है वो सब पर अप्लाई किया जा सकता है। ये स्पेसिफिकली लिखा है मरकरी के लिए क्योंकि मरकरी का टेस्ट आपका मेंशन है सिलेबस के अंदर। और टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अगेन
ये बिल्कुल वैसा आपका सिमिलर है, आर्सेनिक वाला टेस्ट करके आए हो। सैंपल लोगे आपका कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, पोटेशियम आयोडाइड ऐड होगा, जिंक ऐड होगा, और मर्करी क्लोराइड पेपर फिर से वही चीज़ ऐड होगी। और मर्क्यूरी क्लोराइड जो वो रिएक्ट करेगा, स्टेन प्रोड्यूस करेगा, और इस स्टेन को हम 40 मिनट्स के बाद देखेंगे। और फाइनली स्टैंडर्ड और टेस्ट के कलर्स को कंपेयर करेंगे, और जिसका कलर कम होगा, जिसका स्टेन की इंटेंसिटी कम होगी, वो टेस्ट पास हो जाएगा। अगर टेस्ट की कम है तो टेस्ट पास हो गया, अगर नहीं है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। So this was all about limit test of metals and your first class of inorganic chemistry. So thank you very much for joining. कोई डाउट हो तो बताओ। ज्योति, नो सर, कोई डाउट। तो ये कॉमन वाला बता देना कि सबसे कौन सा वाला? अल्कोहल वाला, ठीक है। समझ आया कुछ क्लास में? हाँ सर। बाकी तो चले गए, कोई नहीं, अपनी अपनी वो है, चॉइस है। चलो ठीक है, आप लीव कर दो, कोई डाउट हो तो देख लेना, ठीक है।